کہیں کا غصہ آدمی لا کر مسجد کی جماعت پہ نکالتا ہے. مسئلہ کہیں پیدا ہوا تھا، غصہ کہیں کسی مسئلے پر آیا تھا، اب وہ لا کے مسجد کی جماعت پہ اتار دیا. اور رات کو بیوی سے انبن ہو گئی. ہوتی رہتی ہے تبلیغ والوں کی بھی ہو جائے تو کوئی ایسا نہ ہونے والی بات نہیں ہے. حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کب خوش رہتی ہو، کب ناراض رہتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو، یہ معلوم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ حضور لیکن محبت آپ سے ہی ہے. دل سے محبت، زبان سے میں کچھ کہوں لیکن محبت دل سے آپ سے ہی ہے. تو رات کو بیوی سے کچھ انبن ہو گئی. میں مثال دے رہا ہوں. صبح کو انہوں نے اسٹرائک کر دی، ناشتہ نہیں دیا، چائے نہیں دی، نہ ناشتہ نہ چائے، کیونکہ وہ رات کا اثر تھا. اب اس کو کوشش کی کہ ذرا بیوی کو کہیں کہ ذرا چائے دے دو، آج تو حلقے کا مشورہ ہے، وہاں مشورے میں جانا ہے جلدی. لیکن وہ کر کے سوتی رہی. دیر ہو گئی تو اٹھ کے نکل گئے. کیا کریں بھائی، وقت ہو رہا ہے، جانا ہے مشورے میں. اور راستے میں کہیں ہوٹل پر بھی ناشتہ چائے نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ پھر پوچھیں گے مولوی صاحب کیا بات ہے آج ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں. تو سیدھے مشورے میں پہنچ گئے. مشورے میں بیٹھے، وہ اندر گیس بھرا ہوا تھا. گیس، کون سا گیس؟ جو رات سے چل رہا ہے. وہاں مشورے میں پہنچ کے ایک رائے تھی. دوسرے ساتھی نے، سامنے والے نے اس کے خلاف رائے دی، تو بس وہ سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب یہ دیکھو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. میں کوئی رائے دیتا ہوں میرے خلاف رائے دیتا ہے. یہ میرا ساتھی ہمیشہ، امیر صاحب جب بھی میرا دیتا ہوں نا، یہ میرے خلاف رائے دیتا ہے. اب اس کے بعد یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو تو، وہ جو سامنے والا ہے وہ بھی اگر اسی حال میں آیا ہو تو، دو سلنڈر ٹکرا گئے. اور مسجد کی جماعت پاش پیس. ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. حاجی عبدالوہاب صاحب، بڑی دوستی تھی ان کی مولانا عبید اللہ صاحب کی، ایک طرح سے بے تکلفی بھی تھی تھوڑی سی. دونوں مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگوں میں تھے. تو حاجی صاحب نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب، یوں مت کہو، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. حاجی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب نے اس کی کیا اصلاح کی؟ ارے بھائی کچھ سن رہے ہیں؟ سو گئے. حاجی صاحب نے کہا کہ ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی عبدالوہاب، یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ
जुड़ना नहीं आता। जुड़ना, हर हाल में जुड़ना, जुड़े रहना, हर हाल में जुड़ना, हर हाल में जुड़े रहना, न कटना न काटना, खुद कटना नहीं, किसी को कटने देना नहीं। नबी उम्मत को जोड़ते हैं, उम्मत के जोड़ का जरिया है नबी, और माँ घर के जोड़ का जरिया है, माँ घर के जोड़ का जरिया है। और दाई, दाई वो साथियों के जोड़ का जरिया है। नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, माँ घर के जोड़ का जरिया है, दाई साथियों के जोड़ का जरिया है। 4 बेटे हैं, एक आदमी के 4 बेटे हैं, एक मौलाना साहब, एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब और एक बेकार साहब। एक आलिम है, एक हाफिज है, एक इंजीनियर है और चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं। ये बताइए माँ की शफकत किसके साथ ज्यादा है? तो भाई माँ की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मौलाना साहब के साथ, हाफिज साहब के साथ, इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ? जो बेकार साहब है उनके साथ है। बाप गुस्से में आकर उसे बाहर घर से निकाल देता है कि निकल जा बाहर, किसी काम का नहीं, ना दीप के काम का, ना दुनिया के काम का, बेकार पड़ा रहता है, निकल जा घर से बाहर। माँ उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और उसे भी समझाती है कि देख बाप को नाराज न कर, उनकी बात मान, उनकी बात सुन, अरे उनका चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है, बाप का चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है। तो उन्हें नाराज मत कर, उनकी बात सुन, उनकी बात मान। बेटे को समझाती है और शौहर को समझाती है कि देखो इसे अंदर ही रख के ठीक करो, अगर बाहर निकालोगे तो ये और बिगड़ जाएगा, पाबंदी सब हट जाएगी और बिगड़ जाएगा, फिर दुनिया तुम्हें ही कहेगी कि देखो फलां का बेटा कितना बिगड़ा हुआ है। हा? तो वो बाप को भी समझाती है, शौहर को भी, बेटे को भी समझाती है। हा? तो माँ घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, और दाई साथियों के जोड़। दाई वो है जो साथियों को जोड़ ले, खुद नहीं कटना, किसी को कटने नहीं देना। तो मैं कह रहा था कि हाजी साहब ने फरमाया कि बहुत दिन हो गए मैं मौलाना की बात भूल गया, जो मेरी मौलाना से बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मौलाना अब्दुल्ला साहब से क्या बात हुई थी? क्या हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता? तो मौलाना ने क्या कहा था? भाइयों को हो कि हमें साथियों से जुड़ना नहीं आता। तो ये बात काफी अरसा हो गया, भूल गया मैं। फिर एक दिन मैंने कहा हाजी साहब से कि मौलाना से कि मौलवी उबैदुल्ला हमें साथियों को चलाना नहीं आता, साथियों को चलाना नहीं आता, ये मैं भूल गया पिछली बात। तो मौलाना उबैदुल्ला साहब ने फरमाया कि भाई अब्दुल वहाब यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। क्या फर्क है? उन्होंने कहा चलाना नहीं आता, तो आज तो मौलाना ने क्या इस्तेमाल की? साथियों के साथ चलना नहीं आता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें एक माहौल दिया है, वो तबलीग का माहौल है। हमारी मस्जिद की जमात हमारा माहौल है, हमारी मस्जिद की जमात हमारा माहौल है, हमारे शहर के जिम्मेदार हमारा माहौल है, हमारा हफ्तेवारी मशवरा हमारा माहौल है, हमारी शबगुजारी हमारा माहौल है, और हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारा माहौल है। तो इस माहौल से जुड़े रहना,
जुड़े रहना। हालात आते हैं, हालात आते हैं, अल्लाह से हालात मांगना नहीं, आफियत मांगना, लेकिन हालात आए तो ये समझना कि ये हमारे इम्तिहान के लिए हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दारुल इम्तिहान है, इसका नाम दारुल इम्तिहान है। ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ दिन भी है, रात भी है, खुशी भी है, गम भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। कभी हालात साजगार हैं, कभी हालात नासाजगार हैं। तो ये हालात आते हैं, लेकिन हर हाल में अपने माहौल से जुड़े रहना। कभी कभी शैतान ये ख्याल लाता है कि भाई इतने जमाने से जुड़े हैं, इतना काम किया है, फिर भी वो कैफियत नहीं पैदा हुई। कैफियत के चक्कर में हमें मत पड़ी, कैफियत के चक्कर में मत पड़ी। हम तो मजदूर हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। कैफियत पैदा हो ना हो, हमें तो हुक्म पूरा करना है अल्लाह का। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब एक मिसाल दिया करते हैं कि भाइयों, आम के दरख्त में जब आम लगता है, शुरुआत होती है उसकी, तो उसका साइज छोटा है और उसका रंग हरा है, मजा उसमें कुछ नहीं, खुशबू उसमें कुछ नहीं। ये उसकी इब्तिदा है कि जब आम के दरख्त में आम का फल लगता है तो उसकी शुरुआत, उसका साइज छोटा, उसका रंग हरा, उसमें मजा कुछ नहीं और उसमें कोई खुशबू नहीं, लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, टूटता नहीं है, वो लगा रहता है, दरख्त से लगा रहता है। तो फिर एक वक्त आता है कि उसका साइज बढ़ता है, फिर एक वक्त आता है कि उसका रंग बदलता है, फिर उसमें अल्लाह खुशबू पैदा करते हैं। घर में आम रखा हो तो अंदर जाती है खुशबू आती है, अच्छा ये आम कहां से आ गई। और फिर अल्लाह उसमें रस भरते हैं, रस, अपनी कुदरत से रस भरते हैं। जड़ों में रस नहीं है, डालियों में रस नहीं है, फूलों में रस नहीं है। आम में रस कहां से आता है, कहां से आता है? अल्लाह की कुदरत के खजाने से आता है, और अल्लाह अपनी कुदरत के खजाने से उस आम में रस भरते हैं। आम के जमाने में बारिशें होती हैं, जबरदस्त बारिशें, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला के रख देती हैं, हिला देती हैं दरख्त को। अगर वो कट गया तो गिर गया, और जब गिरा तो जो आना चाहिए वो आता नहीं, और जो है वो भी, जो आना चाहिए वो आता नहीं, और जो है वो चला जाता है। परिंदे भी ठोंगे मार मार के छोड़ देते हैं, वो भी पूरा नहीं खाते। परिंदे की ठोंगे होती हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, लगे रहना, लगे रहना। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा। फरमाते थे कि लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा। और ये फरमाते थे कि भाई अमल होगा तो उसमें इखलास आएगा, अरे अमल ही नहीं होगा तो इखलास का हवा में आएगा। फरमाया करते थे कि अमल में लगे रहो, जब अमल में लगे रहोगे तो इखलास तो अमल में ही आएगा या हवा में आएगा, और जब अमल नहीं होगा तो इखलास कहां से आएगा? जैसे दूध लेना है लेकिन बर्तन तो चाहिए भाई, दूध लेने के लिए बर्तन तो चाहिए, वरना कहां दूध लोगे, हाथ में दूध लोगे। तो अमल बर्तन है और इखलास दूध है। बर्तन होगा तो उसमें दूध आएगा, और अगर बर्तन ही नहीं है तो फिर दूध के हाथ में है, चुल्लू में लेंगे हम। हज़रत फरमाते थे कि अमल में लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा।
जोड़ना और जोड़ना, इसके लिए 3 बातें जरूरी है। काम करने वालों में 3 बातें जरूरी है। 3 बातें। एक, जबान मीठी, जबान मीठी, खींची नहीं कि जहां से चले वहां से काटती चली जाए, खींची जहां से चली कपड़े को काटती चली गई, अब वो कपड़ा किसी काम का नहीं, कट गया, खींची काटती चली गई। तो जबान मीठी, गन्ने की तरह, गन्ना, गन्ना कहां से मीठा है? भाई कहां से खाओ तो मीठा है, कहीं से भी खाओ वो मीठा है। और करेला, करेला कहां से कड़वा, कहां से मीठा? अरे भाई कड़वा करेला कहां से मीठा, कहां से कड़वा? वो हर तरफ से कड़वा है। तो जबान करेले की तरह नहीं, कृषि की तरह नहीं, वो मिठास हो मीठी, कि कहीं से भी खाओ वो मीठी है। हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसले दिलाने वाली, हिम्मत बिठाने वाली नहीं, हौसला तोड़ने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसले दिलाने वाली। तो जबान मीठी हो, किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं, किसी की हौसला तोड़ना नहीं। तो मैं एक मरतबा जा रहा था, सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। ये ट्रकों पर, बसों पर पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो किराए पर चलती हैं बसें, गाड़ियां, ट्रक, उन पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो ट्रक पे पीछे लिखा हुआ था, दिल बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। कहते हैं साइट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, प्लॉट बराए सेल, घर बराए सेल। तो यहां क्या लिखा था? दिल बराए फरोख्त, और आगे लिखा था कीमत 2 मीठे बोल। दिल बराए फरोख्त, कीमत 2 मीठे बोल। तो 2 मीठे बोल बोलो, दिल ले लो, दिल ले लो। तो दाई की बड़ी खुसूसियत है कि उसकी जबान मीठी हो, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली नहीं, हौसला बिठाने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली। ये सिफत है दाई कि मीठी जुबान। दूसरी सिफत है ठंडा दिमाग। जबान मीठी, हमारे हज़रत जी फरमा देते हैं कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हक बात कड़वी होती है, हक बात कड़वी होती है, और उसका एक ही मतलब लेते हैं। उसका एक मतलब ये लेते हैं कि हम हक कहेंगे चाहे किसी को कड़वा लगे, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, अरे हक बात है, किसी को कड़वी लगे। एक ही मतलब लोग लेते हैं। इस हज़रत जी वहां इनाम साहब फरमाते थे कि इसका एक और मतलब भी है। इसका एक मतलब और ये है कि हक बात को ऐसे अंदाज से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना तुम्हें कड़वा लगे। एक मतलब ये है कि सुनने वाले को कड़वा लगे, वही मतलब हम समझते हैं कि हम तो कहेंगे चाहे सुनने वाले को कड़वा लगे। हज़रत जी ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि ऐसे अंदाज से कहो, ऐसे तरीके से, उसलूब से कहो कि सुनने वाला कबूल कर ले, चाहे उस तरह कहना, बोलिए, तुम्हें कड़वा लगे। सुनने वाले के लिए सारा कड़वा, बोलने वाले के सब मीठा ही चाहिए। अरे भाई, बोलने वाला ऐसे अंदाज से बोले कि उसका बोलना चाहे उसको कड़वा लगे, लेकिन सुनने वाला कबूल कर ले। एक मतलब ये भी है। तो
میں کہہ رہا تھا کہ زبان میٹھی. دوسری بات دماغ ٹھنڈا ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب آئے, تعارف کرایا, یہ ہمارے یہاں کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. سرگرم کارکن. میں نے کہا بھائی سرگرم تو نہیں ہونا چاہیے, پیر گرم ہونے چاہیے, خوب گشت کریں. پیر گرم ہونے چاہیے, خوب گشت کریں. سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. سر اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ کسی کی بات سن کر وہ ریاکٹ نہ کرے, رد عمل نہ کرے. جیسے برف کی سلی, چنگاریاں برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتی ہیں وہ چنگاریاں, بجھ جاتی ہیں. اور اگر تیل کی کڑائی میں چنگاری پڑے تو پانی کے چھینٹے, تیل کی کڑائی, تیل پک رہا ہے, اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ہو کے آتی ہے. تو دماغ تیل کی کڑائی کی طرح نہ ہو کہ ہر وقت اٹھ رہا ہے, گرم ہو رہا ہے. کسی نے کوئی بات کہی, اب پانی کی چھینٹوں کی طرح ہو گیا تیل کی کڑائی میں. کوئی کچھ کہے, اپنا ساتھی کہے, اور کوئی بھائی کہے, اس کی باتیں تائی کے اندر ایسے آ جائیں جیسے برف کی سل پر چنگاری پڑ کے بجھ گئی. کوئی رد عمل نہیں. تو دماغ جو ہے وہ برف کی سل کی طرح ہو کہ جو بھی باتیں آئیں وہ اس کو پی جائے. وہ اس کا دماغ تیل کی کڑائی بن کے واپس نہ آئے. ٹھنڈا دماغ, ہر ایک کی بات سن لی, ہر ایک کی بات سن لی, اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیا, کسی کی بات پر رد عمل نہیں ہوا, سنتے چلے گئے. اور کرنا وہ جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے. سننا سب کی ہے لیکن کرنا وہی ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. میں کل مشورے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں علی گڑھ تو کسی زمانے میں ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. کسی زمانے میں علی گڑھ ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. تو بڑے بڑے بزرگ آیا کرتے تھے, اور جو بھی آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جن میں قوت عمل ہے, تو وہ مختلف رائے دیتے تھے کہ بھائی یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. تو بہت سے لوگ آ کے رائے دیتے تھے, اور نوجوان سب قوت عمل وہ جوانی, تو وہ ان کا ذہن مشوش ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب پرانے لوگوں میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہر درد کی